ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। कोट पराध हमारे खंडो अनेक विधि समझावो। हम ज्ञान अलप मत थोड़ी तुम आपन बिरद रखावो। तुमरी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सजन सुहेले। राखो राखनार दयाला नानक करके गोले। जी राखो राखण हार दयाला नानक करके गोले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिन्हां दी अपार बख्शिश रहमत हुई है, जो ये सुभाग समय सतगुरु ने बख्शिश कीते हन, सोहणे सवास बख्शे हन, ताकि इन्हां नूं सत संगत दी घड़ियां विच बतीत कर सकीए। सारे भागां वाले हो जो सतगुरु दी बाणी दी अंदरों मन करके प्यास विच बैठे हो। सो आओ मनो बिरतियां नूं इकागर करन दा यतन करिए। जे किथे मन भज रिहा है, मन नूं आवाज़ मारिए, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। इस घर दे विच तू आ जा और इस हिरदे घर दे विच अपने घर विच आके उस प्रभु सिफत की सलाह कर और इस दे विच आनंद माण। सो सतगुर रहमत करन, जिवें रसना ते बैठणगे, जिवें आप बुलाउणगे, ज्यों बुलावे हैं त्यों बोल है स्वामी। कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो जो प्रभ की अत प्यारी। सो आओ गुरु साहब बख्शिश करन। अज जिस तरह सतगुरु ने जो विशा दिता है कि गुरु अपने सिखां नाल बहुत प्यार करता है। कुछ असी पहला 10 गुरु साहिबाना दे दर्शन करके फिर गुरु दे जीवन दे विचों कितना लाडला प्यार, कितने गुरु ने सिखां दे नाल प्रेम कीता है, उस दे विच विचार करन दा यतन करांगे। देखो संसार दे विच कोई भी बिल्डिंग इमारत तैयार करनी होवे, उस दे खाके दी लोड़ पैंदी है। भाव आर्कीटैक्टर उस बिल्डिंग नूं पहला एक स्ट्रक्चर बना के दिंदा है कि इस तरह ये बिल्डिंग तैयार होनी है। कई जगह ते जाओ, जिस तरह दास कई कंट्रियां विच गया है, जिस तरह दुबई ले लो, उत्थे एक इमारत है, आप सब ने भी देखी होनी है जिहड़े गए होणगे। 175 मंजिल की बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा करके कहते हैं। देखो उस इमारत नूं बनाउण वास्ते कितने आर्कीटैक्टर ने उस इमारत नूं पहला पूरा नक्शा बनाया होएगा। और इतनी उच्ची इमारत, मजबूत इमारत वास्ते नैचुरली उस दियां नीवां भी बड़ियां मजबूत कीतियां होणगियां, क्योंकि एक खाका तैयार करन वास्ते
ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲੱਕੜ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੋਹਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, POP ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਸੀਮੈਂਟ, ਕਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 200 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ 30 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, 230 ਈਅਰ। 1469 ਵਿਖੇ 1469 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਰੀਬ 1699 ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੋਹਲ ਛਕਾਈ, ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ? 1469 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਬ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖ ਦੇ ਇਹ ਕਰੀਬ 230 ਸਾਲ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ, ਖਾਕੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਖਾਲਸ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲਸਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਖਾਲਸ ਸ਼ੁੱਧ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਉਹ ਸਚਿਆਰ ਸਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਖਾਲਸ ਪਿਓਰ ਸ਼ੁੱਧ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੋਟ ਨਹੀਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਮਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤਨਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਆਫਿਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਘੁੰਮਣ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹੀ ਟੀਚਾ ਰਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਲੰਮੇਰਾ ਸਮਾਂ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ 5-5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਕਦੀ ਢਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਏ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹ ਆਪ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੇਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਢਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਮਾਰਤ ਢਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ, ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਭਰਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਸੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰੰਗ। ਕਿ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਭਰਮਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਏ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਮਾਰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਈ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਅਬ ਕੱਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ
देखो कितने प्यार विच गुरु नानक पातशाह ने कित्थे कोई शस्त्र नहीं चलाया, कित्थे कोई माड़ा बोल नहीं बोलिया, और हर एक नूं जाके अपने बचनां दा तीर, अपने मुबारक रसना तो उस परमात्मा दी बाणी दा तीर चला के उस दे डिगे ढैंडे होए मनां नूं गुरु नानक पातशाह ने उस परमात्मा दे नाल जोड़िया कि यह भरम वहम कर्म कांड तुहाडे नाल नहीं जाने। पर ਜਿਹੜੇ समझ गए ਉਹ ਤੇ परमात्मा ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ गए, ਜਿਹੜੇ नहीं समझे ਉਹ ਅੱਜ भी कर रहे ने, ਭਾਵੇਂ ਉਹ सिख धर्म विच ने ते भावें दूजे धर्मां दे ने। जिन्हां नूं समझ आ गई कि परमात्मा नूं पाउण दे ਇਹ गलत तरीके ने, ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ही रस्ता है कि सच नाल लीन होना है ते सच की गल करनी है, झूठ नाल असीं जुड़ना नहीं है। सो गुरु नानक पातशाह ने इस इमारत नूं तैयार करन वास्ते सब तो पहला जिहड़ा रंग भरिया ਉਹ ਸੀ ਭਗਤੀ ਦਾ, कि ਜਿਹੜਾ खालसा मैं तैयार कर रहा वां उस दे अंदर भगती होना लाजमी है। ਜਿਹੜਾ महाराज ने कहा किरत करो नाम जपो, नाम जपण दी महिमा दसी है। ये हएरा कीनो दान नानक के घर केवल नाम, केवल नाम दी गल। भई प्राप्त मानुख दे हरिया, गोबिंद मिलन की तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सिर्फ नाम की गल गुरु साहब ने साडे झोली विच पाई है, और गुरु नानक ने संदेश ही नाम का दिता है। क्योंकि इस कलयुग में कर्म धर्म ना कोई, कली का जन्म चंडाल के घर होई, नानक नाम बिना मुक्त ना कोई। होर किसी भी युगां दे अंदर होर कोई कर्म कांड करके उन्हां दी बंद खलासी हो सकती सी, पर कल युग दे अंदर जे कोई बंद खलासी करना चाहता है, मुकत होना चाहता है, तो नानक नाम बिना मुकत ना होई। बिना नाम तो गुरु नानक पातशाह ने कहा इस कल युग दे अंदर किसी का उद्धार नहीं हो सकता, भावें मैं तुसी कोई भी संसार का जीव होवे। सो जिहड़ा पहला रंग गुरु नानक ने भरिया सी वो सी कि भगती का रंग। दूजा रंग साध संगत इहदे विच भाई लहणा जी ने, जो कि गुरु अंगद देव महाराज के रूप विच जिहड़ा रंग भरिया सी वो सी हुक्म दा, कि अपने गुरु के प्रति, ईष्ट के प्रति जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। जो गुरु ने कहा है असी उसनूं चंगा मन के, भला मन के असी मन लईए। और इतिहास गवाह है कि गुरु नानक पातशाह की किसी भी गल नूं गुरु अंगद देव भाई लहणा जी ने कदी टालिया नहीं सी, क्योंकि उन्होंने रब रूप जान लिया सी ते रब दे नाल असी शरीक नहीं बनना। ये गल समझ आ गई, भावें उन्होंने दे साहिबजादियां नूं समझ नहीं आई। असी की करने आ, असी गुरु दे अगे अपनी गल भी रखने आ ते गुरु दी भी नहीं मनदे। दोनों ही गल्लां ने साध संगत। पढ़ी दा ना इहदे विच आसा वारिक पंक्ति बड़ी सोहनी आंदी है, सलाम जवाब दोवें करे मुंदो घुट्ठा जाए। असी सलाम भी करने आ गुरु नूं ते जवाब भी देने आ। नहीं नहीं भाई, हुक्म मन्निए होवे परवान, तां खसमे का मैल पाए सी। जे हुक्म मन्नांगे तां ही उस प्रभु परमात्मा दे घर विच सानूं थां मिलेगी। ते जे असी उहदे अगे जवाब दे दिता, पिता ने कहा ये घर चढ़ जा पेड़ ते मिठाइयां गिरनगियां, तो फिर असी किंतु परंतु कर रहे हैं। सलाम जवाब दोवें करे, मत्था भी टेक रहे हैं पिता गुरु नूं, पर पिता दी गल, पिता जी ये किवें हो सकता है किसी पेड़ दे उत्ते मिठाइयां गिरदियां, ते कदी अज तक फल देखे ते देखे ने, पर मिठाइयां भी कदी गिरियां ने। नहीं समझ आई ना कि वो पिता नहीं ने, वो परमेश्वर आप नारायण कला धार जग में परवरे हो। वो तो आप नारायण आके सानू समझा रहा है। इस पढ़ाई नूं गुरु अंगद देव महाराज ने पढ़ दिता, और उस पढ़ाई नूं ही भावें कितने उदाहरण ने, मैं एक एक नूं लवां ते समा लग जाएगा। कहण तो मुराद कि हर एक हुक्म नूं सिर मत्थे लैके गुरु अंगद लहणा जी ने गुरु अंगद का रूप धार लिया। गुरु साहब ने अंग ना लगा के भाई तू उस हुक्म दे अंदर रह के, क्योंकि हुक्म ही
उस परमात्मा तक ले जा सकता है। सो ये रंग खालसे दे विच एक रंग गुरु अंगद देव महाराज ने भरिया, वो रंग सी हुक्म दा। तीजे पातशाह ने इस नूं चलदे चलदे इस विच होर खूबसूरती लियांदी कि इस दे अंदर सेवा दा रंग भरिया। जो अज संसार भर विच सेवा देखदे हो ना, कोई खालसा ऐड ते होर कित्थे कित्थे विपता आंदी है, पीड़ा आंदी है, कोई ऐसे सरकमटांसिस बन जाते हैं जिथे कोई भी सहाई नहीं हुंदा, उथे गुरु दे लाल पहुंच के उस परमात्मा दियां नूं ध्यान विच रख के उत्थे जाके सेवा निभाते हैं। तो उस वेले ध्यान आ जाना चाहिए कि इस सारी देन बाबा बुजुर्ग बाबा गुरु अमरदास पातशाह दी है। कि इतनी वडेरी लंबी उम्र विच भी होंदियां, देखो उस उम्र इत्ते बंदा रिटायरमेंट लैंदा है ना, गौरमेंट भी कहती हुण तू काम करन दे काबिल नहीं, हुण तू घर बैठ। उस उम्र विच भी देखो गुरमुख बुढ़े कदे नहीं। वो गुरमुख ते कदी बुढ़े होंदे नहीं, क्योंकि बुढ़ा तो हुंदा है बंदा शरीर करके, मन करके बुढ़ा नहीं होंदा। ये पढ़ाई गुरु अमरदास पातशाह ने तीजे जामे च आके 72 साल की उम्र विच 12 साल गुरु अंगद देव महाराज दी ऐसी बख्शिशां प्राप्त कीतियां, बिना नागे एक भी दिन खुंजाए तो बिना ब्यासा तो राती 12:30 बजे 11:30 बजे आराम करते सन। मैं इतिहास पढ़ रहा सी एक बारी, ते पता कि उत्ते रोड़ियां दे उत्ते महाराज आराम करते सन, रोड़ियां दे उत्ते, ताकि मैनू पक्की नींदर ना आ जाए। ते 12:30 बजे उठ के ते इन्नी भारी गागर लैके ते ब्यासा तो रोजाना जल लिया के ते गुरु अमरदास पातशाह नूं इशनान कराउंदे सन। ते सतगुरु ने त्रुट के गुरु अंगद देव महाराज ने, भावें रिश्ते चो कुड़म लगते सन, पर गुरु अमरदास पातशाह ने कुड़म वाला रिश्ते नूं परे करके एक गुरु ते सेवक दे रिश्ते नूं अगे रख के उस सेवा नूं निभाया। और गुरु ने फिर त्रुट के 12 वर दिते सेवा तो त्रुट के। निमाणियां दे मां, निताणियां दे तान, न्योटियां दी ओड़, निआसरियां दा आसरा, नी गतियां दी गत, नी पत्तियां दी पत, नी धरियां दी धिर, नी लज्जियां दी लज, भन्नन कड़न समर्थ। जद इतने गुरु साहब बख्शिशां अंगद दे वंडी जा रहे सन ना, ते उस वेले उन्हां दे महल आ गए महाराज अंगद देव जी नूं कहण लगे, सारा कुछ ही तुसी गुरु अमरदास पातशाह नूं दे रहे हो। कहंदे ने मैं कुछ भी नहीं दे रहा, ये ते इन्हां दी सेवा इन्नी अंथक है, इन्नी अंथक सेवा है। हुण ते मेरे को सिर्फ दरगाह की कुंजी बची है, चाबी बची है, ये भी मैं इन्हां दे अगे सपुर्द कर रहा, वो भी छोटी है। दरगाह की कुंजी, ये 12वां वार मिलिया गुरु अमरदास पातशाह ते साध संगत हर साल उन्होंने एक सिरोपा मिलता सी। अज तक खैर असी मुल नहीं पाते, गुरु साहब ने त्रुट के से अज तक कोई एवं कोई जकारा भी ला दे तो असी उन्होंने सिरोपा पा देने, नहीं साध संगत किसी ने घालना की होए तां ये सिरोपा प्राप्त होंदा है। सो सेवा दी एक जिहड़ा रंग भरिया गुरु अमरदास पातशाह ने, सेवा करत होए नह कामी तिसको होत प्राप्त स्वामी। अगे चल के धन गुरु रामदास पातशाह ने जिहड़ा रंग भरिया है साध संगत, वो सी बैराग दा। सिफती रत्ता सद बैरागी, जन्म जूए ना हारे, जूए जन्म ना हारे। इतना बैराग सी उन्हां विच। मैं कई बारी बाणी दे दर्शन करना वा ना, ते धन गुरु रामदास पातशाह दे सब तो ज्यादा विरागमई शब्द तुहानूं अपने गुरु परमात्मा दे रूप विच वेख के उन्हां दे प्रति जिहड़े शब्द उच्चारदे सन, हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपते। देखो ये वेदना है, ज्यों त्रिखावंत बिन नीर। कहंदे मेरी इस तरह तृप्त मेरे अंदरों वो त्रिखावंत भाव
जिस तरह एक मनुख की बिना पानी तो प्यास तो कितनी हालत खराब हो जाती है जे पानी ना मिले तो। कहते मेरी हालत उस तरह में जे मैं तेरे दर्शन बिना तो रहना। ये साध संगत गुरु की वडियाई है। ये बैराग इतना हुंदा सी। मैं इतिहास पढ़ रहा सी कि ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ बैठ के भगती करते सन ना एक जगह ते इतने भिज जाते सन कि ਜਦੋਂ उठते सन ना उन्होंने शासन तो सारी धरती गिली हुई होंदी सी। ये बैराग आंदा सी। तां ही कई बारी कीर्तनीय कहते ना साध संगत कीर्तन गांदे गांदे कहते ने भिज जाओ। असी छोटे होंदे सन असी समझते पता नहीं कोई बारिश होएगी या पानी पावांगे भिज जाओ सानू नहीं पता हुंदा सी। पर जदों जदों संगत करते रहे तो यह पता लग्या कि बाणी दे विच भिज जाओ। उस वेले साध संगत भिज जाने का मतलब कि अपने आप विचों निकल जाओ। उस परमात्मा दे सोहले दे गान विच इतना लीन हो जाओ जिस तरह भवरा फुल बंद हो जाता है लेकिन उन्होंने होश नहीं होती। सतगुरु महाराज इतने बैराग विच गुरु रामदास पातशाह ने ये रंग भरिया बैराग दा कि सिख दे अंदर जिथे भगती है जिथे हुक्म मनना है जिथे सेवा होनी है उथे बैराग होना भी सिख दे अंदर जरूरी है। देखो यह पूरी इमारत बन रही है। अगर सिख इस मुताबिक चलेगा तो गुरु पातशाह ने अपना रूप देना है। पंजवें गुरु नानक धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने इस दे विच निमरता का रंग भरिया। गरीबी बहुत नीवा अपने आप इहदी मिसाल है। ग्रंथ उच्चारण तो बाद भी अखीर विच लिखते हैं तेरा कीता जातो नाई मैनू जो कितोई। बड़ी निमरता महाराज जी। जे वह निमरता साडे विच आ जाए। इतिहास विच एक छोटा जिहा प्रसंग मिलता है। जदों गुरु अर्जन देव महाराज हरमंदर साहब की कार सेवा करा रहे सन ना महाराज अपने घरों तो चल के जब दरबार साहब आते सन ना छोटियां गलियां होंदियां सन। बहुत छोटियां छोटियां गलियां अज भी ने हरमंदर साहब जाओ ना महाराज गुरु दे महल तो होके आना ते रस्ते विच छोटियां गलियां होनियां ते नाल सिंह होने ते प्रिथी चंद ईरखावश हो के इतनी ईरखा करन लग पिया। उन्होंने सिखां नूं कह के कहा कि जदों गुरु साहब ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ गली विचों लंघन ना तुसी इन्हां दे सिर दे उत्ते कूड़ा पा देना। गुरु साहब लंघ रहे सन उस मुताबिक उन्होंने सिखां ने गुरु साहब के उत्ते कूड़ा पा दिता। तुसी मैं इतिहास पढ़ रहा सी मैं क्या धन गुरु अर्जन देव महाराज तुसी निमरता दे कुंज। महाराज ने पिछे परत के देखे ही नहीं तो साडे वर्गा होवे किसी ने गाल कट दी होए सी आपे तो बाहर हो जाने ना कूड़ा पा देना सिर दे उत्ते और सिख कहंदे ने तुसी हुक्म करो असी इन्हां नूं हुणे दसने। महाराज कहंदे ने नहीं जे इन्हां ने कीता असी इन्हां नाल इह वजह वर्ताव करांगे ते इन्हां और साडे च फर्क ही रह जाएगा। ये जे निमरता की निशानी। फरीदा जोते मारन मुकियां तिन्हां ना मारे घुम अपने घर जाइए पैर तिन्हां दे चुम। ये निमरता जे। कई बारी बंदा देखो मैं गल कहां किसी ने अगर किसी ने कुछ कह दिता है और गलती नहीं होती उन्हें कह दिता है बड़ा कुछ कह दिता है वो बंदा चुप होया भी ना ਉਹਨੂੰ फील हो जाता है कि अंदरों कि मैं हारिया होया बंदा ते जिदे कोई कुछ भी ਉਹਦਾ कसूर नहीं मैं कुछ कह देता। कई बार किसी की चुप भी ना निमरता भी ਉਹਨੂੰ अपने आप विच पश्चाताप करा देंदी है। बड़ी वड्डी गल है। नहीं तो फिर कित्थे फिर सिरी साहब भी चकनी पैंदी है। कई बार निमरता ऐसी बंदे नूं बिना के कुछ अपने आप विच फीलिंग आ जाती है कि मैं कीता गलत है। इस निमरता का रंग इतिहास भरिया पिया। मैं ज्यादा नहीं टूक मात्र लैके मैं बड़े प्यार नाल 10 पातशाह ये रंग भर रहे हैं। खालसा का जिहड़ा रंग गुरु साहब ने बख्शिश किया 6वें जामे विच आके
हरगोबिंद पातशाह ने वेख्या हुण ते शहादत हो गई है और बेकसूर इस तरह के अगर काम होए तो कभी भी ये वजे दुश्मन ते लताड़ छड्डणगे। फिर उन्होंने क्रांति लियांदी, बदलाव लियांदा। वो बदलाव का रंग सिख विच भी नजर आना चाहिए है। 2 तलवारां गुरु साहब ने पाईयां बाबा बुढ़ा जी वालों, जो बख्शिशां होईयां, 2 किरपानां बधियां, एक मीरी दी एक पीरी दी, एक अदल दी एक राज दी, एक राखी करे फकीरी दी, एक मीरी दी एक पीरी दी। भाई हुण समा निमरता दा खत्म हो गया। खत्म तो भाव जे निमरता दे विच भी कोई ना समझे तो फिर इक्को ही गल है, वो वे फिर हथियार। पहल करनी नहीं, फिर दूल छोड़नी नहीं। भाव कि किसी नूं चढ़ाई करके नहीं जाना, पर जिहड़ा आवे ते ओदा जवाब भी उसनूं देना है। एक मीरी दी एक पीरी दियां 2 तलवारां, भाव भगती ते शक्ति, संत ते सिपाही, ये 2 तलवारां पाईयां गईयां। और महाराज ने 4 जंगां भी जित्तियां। ये बदलाव लियांदा। 7वें गुरु नानक गुरु हरराय साहब पातशाह ने इस दे विच शांति का रंग भरिया कि सिख शांत भी होना चाहिए है। और 2200 भावें घुड़सवार भी रखे सन, सेना भी सी, पर संदेश शांति का बहुत दिता उन्होंने। भलाई केंद्र तक भी खोले और राजे दे उन्हां दे दारा शको वर्गियां दे, हालांकि उन्हां दे दादियां नूं भी जे शहादत का जाम पिलाया, फिर भी उन्हां नूं लोड़ पई है ते उस दवाखाना विचों दवाई भी दिती है। 8वें गुरु नानक गुरु हरराय साहब, गुरु हरकृष्ण पातशाह, वाहिगुरु हरकृष्ण पातशाह, जिन्हां ने इस इमारत दे विच रंग भरिया पर उपकार दा। जन पर उपकारी आए, जी दान ते भगती लाइन, हर स्यों लैण मिलाए। देखो पर उपकार, एक हुंदा उपकार, एक हुंदा कार, एक हुंदा उपकार, एक हुंदा पर उपकार। कार ते असीं सारे कर रहे हैं, अपने वास्ते सब कोई करता है। उपकार हुंदा अपने जिहड़े जानकार ने, ये मैनूं जानदा, चलो उपकार कर लो, मैनूं किसी टाइम ये मैनूं फायदा देगा। कई बार असीं कहने हैं ना बई इहदी मदद कर दो, जे सानूं कदी लोड़, एक मन च खाना हुंदा है, इहनूं उपकार कहंदे ने। एक हुंदा पर उपकार, अननोन बंदे वास्ते जो जानदा ही नहीं। वो छोटी आयु विच गुरु हरकृष्ण पातशाह, जो दिल्ली दे विच वो महामारी चेचक दी उस वेले फैली सी, गुरु साहब ने अपने ते उपर लैके उस बीमारी का खुलासा उसनूं खत्म किया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं कहना भी पै गया कि श्री हरकृष्ण ध्याई है, जिस डिठे सब दुख जाए। मैनूं किसी ने सवाल किया सी कि सब दुख का की भाव है। मैं क्या जी, दुख गुरु गोबिंद सिंह महाराज के सारे दुख चले जाएंगे। दुख 3 तरह के हैं, तीने ताप निवारण हारा, दुख हंता सुख रास। एक जन्मा दे कूण दे बड़े बड़े पाप ने, दुख ने, पर महाराज कहंदे ने सारे दुख नाश हो जाएंगे जे कोई श्री हरकृष्ण पातशाह नूं मन करके ते आएगा। और यदि जींदी जागदी मिसाल ने, अज भी तुसी बंगला साहब जाके सीढ़ियां ते बह जाओ, कापी पेन लैके, श्रद्धालु दर्शन करके बाहर आना ते आप जी पुछ लो तुहानूं इत्थे की बख्शिशां होईयां ने। मैं समझना कापियां पेन साडे घट पै जाणगे, पर सवेर तो शाम श्रद्धालु ये दसणगे कि वो बख्शिशां उस वेले नहीं, हुण भी हो रही ने। ये रंग भरिया परोपकारी दा, देखो खालसा तैयार हो रहा है। गुरु तेग बहादुर पातशाह ने इस विच रंग भरिया बंदगी दा, त्याग दा। त्याग दी मूरत कही दे ना, बंदगी किन्नी सी। सानू कोई कहे ना 1 घंटा अखां बंद करके बैठ जाओ कमरे विच, असी हर 10 मिनट बाद वेखांगे कि समा नहीं हो रहा, घंटा कदों बीतेगा।
पर उस पवित्र आत्मा ने बाबे बकाले दी धरती ते 26 साल 9 महीने 13 दिन अंदर भोरे विच बैठ के उस परमात्मा दी बंदगी कीती। इस तो वड्डा बंदगी दा मूरत कोई नहीं हो सकता। और जताया नहीं और त्याग करन वकत मोह नहीं रखिया। 6 साल दी उम्र तक अपने 30 साल दे बाद भी जिहड़ी औलाद घर विच आई है उसनूं भी नहीं देखा। और जदों वसदा आनंदपुर साहब और छोटी आयु हले यह भी कह सकते सन हले तो मैं बच्चे का सुख भी नहीं देखा, ते तां भी त्याग भावना इतनी सी कि 1 मिनट नहीं लाया। कोई दूजे धर्म का आके पुकार फरियाद की ते उस वेले त्याग भावना इतनी सी। असी ते परिवारां नाल चमड़े हुए हैं ना। गुरु साहब ने 1 मिनट नहीं लाया, सब कुछ त्याग के दूजे वास्ते अपना ठीकरा पान दिता। ठीकर फोर दलील सिर प्रपुर किया प्यान। ठीकरा अपने शरीर का ठीकरा गुरु पातशाह ने औरंगजेब की दलील के उत्ते अपने शरीर का ठीकरा बन के तिलक जंजूर आखा प्रभ ताका कीनो बड़ो कल्लू में साकार। ए वीर जी बंद कर देना माइक प्लीज। वीर जी 2 माइक, हाँ जी प्लीज बंद कर दे। देखो ये रंग भरिया गुरु हरकृष्ण पातशाह ने, गुरु तेग बहादुर बाबा जी ने हुण 10वें जामे च आके इस जिहड़ी बिल्डिंग तैयार हो रही सी ना, जिन्हों 230 साल वरे होण लगे, हुण इनू एक रूप दे दिता। देखो जब बिल्डिंग बनती होंदी है किसी नूं नहीं समझ आउंदा कि वजी बनेगी, अंदरों कि वजे कमरे होणगे, किस तरह इहदी शक्ल निकलेगी। पर जदों तैयार हो जाती है, जदों उहदी इनोग्रेशन जदों इनू ओपनिंग होंदी है इहदी, उस वेले परिवार जी सारे आंदे ना, फिर ये वाह अंदर इतनी कमाल दी, कितने ड्राइंग रूम, कितना बाथरूम, किचन, लॉन, कितना कुछ बनया अंदर। हुण ये जिहड़ी चीज सी ना गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने संपूर्ण करनी सी, जो खालसा दा रूप देना सी। खालसा मेरो रूप है खास। खास तो उन्होंने कहा जाता ना जिहड़ा बिल्कुल ही अपना होवे। असीं कहने ना मित्र है मेरा खास है, तो ध्यान रखना जरा। इहदे विच जिहड़ी इस इमारत दे विच रंग भरिया ना, उसी शक्ति दा। आत्मक तौर ते वेख्या कि सिख ढहंदे पे ने, उन्हां विच आत्मक बल किने भरिया, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने वो शक्ति प्रदान की। अज जिहड़े किसान बैठे ने ना, उन्हां विच जिहड़ा बल है ना, वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज वालों एक आत्मक उन्हां नूं बल है। अरे ये सरकार की दुनिया की भी कोई सरकार खालसे की आत्म शक्ति नूं नहीं ढा सकते। बड़े आए खालसे नूं खत्म करने वाले, बड़े बड़े आए ने, पर मैं वेख्या, मैं इत्थों तक देखा जिन्हां ने हरमंदर साहब ते अटैक किया, भावें कोई भी होवे। हालांकि मैं इत्थों तक सोच रहा सी कि रशिया का जिहड़ा एक कोई की नाम सी उहदा गर्बाचो, उहदी प्लानिंग नाल हरमंदर ते अटैक होया। देखो मैं उहदा इतिहास पढ़ रहा सी, इतना मलिया मेट हो गया रशिया, एक रशिया नहीं कई टुकड़े हो गए। सिखां नूं खालसियां नूं खत्म करने वाले खुद ही खत्म हो जाते हैं, पर खालसे नूं कोई खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि खालसा अकाल पुरख की फौज, ये अकाल पुरख की फौज है। अकाल नूं जिस तरह नाश नहीं कोई कर सकता, उस तरह खालसे नूं कोई नाश नहीं कर सकता। वीर जी प्लीज माइक बंद कर दीजिए। तो ये इमारत तैयार करके गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 1699 भाव 230 साल ला के ये इमारत तैयार करके आनंदपुर साहब विखे एक समागम रच के, जिदे विच ऐसा एक स्नेहा घर घर विच पहुंचाया पूरे हिंदुस्तान विच कि आओ सिखो अज विसाख दी संग्रांद ते असी खालसे दा इकट्ठ करना है। देखो संगत का इकट्ठ होया, फिर आप जानते हो। मैं अपने विषय ते आवां, किस तरह सतगुरु वेखो अपने फिर सिखां नूं प्यार करते हैं। ध्यान नाल सरवण करना।
पहला सीस मंगिया सी ना, कोई इतिहासकार 40 का कट, कोई 80 का, कोई 60 का। चलो यह तक साडा विषय नहीं है। कहन तो मुराद कि बहुत संगत सी उस वेले। मुक्क दी गल यही हुई है। असी क्यों गिनती वाल जाइए। सीस मंगिया ते सारे नहीं उठे, मेरे वर्गे कई शरीरां नाल मोह पिया, वो नहीं उठ पाए। भाई दयाराम जी उठ गए, सारे पंजो प्यारे वारी वारी उठे। मैं कहन तो गल ये वे, इंसान नूं सब तो प्यारी शरीर विच किहड़ी चीज़ चंगी लगदी है? तुसीं नोट कीता है कदी? सब तो प्यारा साडा की है शरीर दे विच, जिहदे बिना असीं कुछ भी नहीं कर सकते। पातशाह कहंदे ना, गोबिंदा मेरे गोबिंदा, प्राण आधारा मेरे गोबिंदा। पढ़ी दा ना, प्रभ जी तू मेरे प्राण आधारे, तू साडे प्राणा दा आधार है। सब तो अमोलक चीज साडे शरीर दी, वो प्राण ने। प्राण निकल गया तो सब कुछ ही चला गया। फिर दसो ना मैं बोल सकना, तुसीं सुन सकदे। बंदा कहता चंगा भला सी, हुण ते सारा शरीर ने, अख भी है, कन भी है, नक हथ मूँह सब कुछ पिया, पर हुण बोलदा नहीं है। ये शरीर नहीं, मिट्टी हो गया। क्यों भाई? शरीर तो उही सी, हुण क्यों मिट्टी हो गया? क्योंकि इहदे विचों जिंद परमात्मा ने जिहड़ी जोत पाई सी वो कढ लई है। कितनी प्यारी हुंदी जोत। एक मच्छर भी नहीं मरना चाहता, एक कीड़ी भी नहीं मरना चाहती जिहदियां अखां नहीं ने। कोई भी मरना नहीं चाहता। कोई 100 साल का बजुर्ग होए, उनको मरना कहता नहीं। गुरु पातशाह ने उन्होंने संग्या पता की दिती? प्यारियां दी। मेरे तुसी प्यारे हो, क्योंकि तुसी मैं तुहाडे कोल सब तो अमोलक दात जिहड़ी मंगी सी ना, वो जिंद मंगी सी तुहाडे कोल, बई असीस, ते तुसी मनु दे दिता। और मैं तुहानू सब तो प्यारी चीज तुसी मनु दिती है, और मैं तुहानू संग्या देना, तुसी मेरे प्यारे हो। भावें उस कठ दे विचों बाद विचों कई पछताए होणगे मेरे वर्गे कि मैं क्यों नहीं उठ गया। पर गुरु साहब ने देखो, अज तक भी तुसी नोट करो कितना समा बीत गया है। अरदास तुसी भी करदे हो, दास भी करदा है, सारे करदे हैं ना। गुरु साहब ने अपने 4 साहिबजादियां तो पहला संग्या प्यार कीता है, वो 5 प्यारियां नाल कीता है। पढ़ने ना 5 प्यारियां 4 साहिबजादियां। देखो कितना प्यारा विषय है। प्यारियां नूं पहला क्या है, कितना प्यार किया है। क्यों? उन्होंने अपनी जिहड़ी जिंद सी ना, अपने गुरु के प्रति प्रवान कर दी। लै लो गुरु, मेरे तो उत्ते कुछ नहीं है, मैं एक जान ही, कहते बंदा यार मेरी जान ले लै तू, जान ही गुरु के अगे रख दी। गुरु साहब ने तुसी मेरे 5 प्यारे हो, और अपने पुत्रों तो ज्यादा मान दिता। यह मैं सच कह रहा। तुसी कदी भी देखो, जदों असी प्रसाद वरताने आ, सब तो पहला प्रसाद जदों सेवादार प्रसाद देग हाथ च लैके भांडे दे विच किन्नियां दा प्रसाद कढ़दा है? पहला मर्यादा देखो साडी 5 प्यारियां दा। देखो ते 4 साहिबजादियां दे नहीं। कई बारी बंदा कह दिंदा कि मारे कहंदे ना सुखी बसे मोरो परिवारा, वो कई बारी व्याख्या कर दिंदा जी गुरु साहब अपने परिवार ना 4 साहिबजादियां दी गल कर रहे ने। और नहीं भाई नहीं, गुरु साहब 4 साहिबजादियां दे नहीं, गुरु साहब अपने बच्चियां दे नहीं, 5 प्यारियां दी, अपने सारे परिवार दी, जेड़े सारा खालसा परिवार है उस दी गल कर रहे ने। सुखी बसे मोरो परिवारा, सेवक सिख सबे करतारा। और देखो प्यारियां दा प्रसाद पहला कटिया जाता है, भोग लगन तो बाद पहला 5 प्यारियां दा प्रसाद निकलता है। और मैं तो एक गल होर हैरानी च हुंदा वां कि तुसी नगर कीर्तन ते जांदे हो ना, बहुत वारी तुसी देखिया होना, एक गल नोट की होनी है। देखो मान किन्ना है। मैं हुण इस गल तो आवां, तुसी नगर कीर्तन ही सब तो पहला अगुवाई कौन कर रहा हुंदा है? 5 प्यारे। और गुरु साहब की सवारी पिछे होंदी है। देखो कमाल की गल है ना।
और जिन्ने भी स्वागत करन आते ने नगर कीर्तन का पहले 5 ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ? 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ 5 ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਰੀਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਾਈਕ ਔਨ ਕਰਕੇ। ਕਿਤਨਾ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਮਾਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗਰੀ ਦਾ। ਉਹ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕੇਸ ਵਿਖੜੇ ਪਏ ਸਨ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖੇ ਸਨ, ਪਿਆਸੇ ਸਨ, ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪ ਜਾਗ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਵਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦਮਾਲੇ ਠੀਕ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਚੁੰਮਿਆ ਵੀ। ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੋਲ ਲੇਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁੰਮ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੇ ਜਦ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬਰਛੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਰਛੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨੇ ਜਕਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਲਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ। ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਟਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਰਛਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾਰੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਗਿਆ, ਉਹ ਮਾਰੀ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ, ਬਰਛੀਆਂ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਿਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਕਹਾਂ, ਸੀਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੇਟ ਤੱਕ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਤਨੇ 100 ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਗੜੀ ਤੋਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਨ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦਾੜੀ ਮੁੰਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ
रब किसी नाल भी ना कराए। चलो एक सोच लीए, सानू फोन आ जाए साडे पुत्र का एक्सीडेंट हो गया तो इत्थे आ जाओ, दसो केड़ा मां बाप दे विच हिम्मत होएगी कि उत्थों तक पहुंच सके? है किसी च अज तक कोई मन दसे? जे इन्नी खबर ही आ जाए कि एक्सीडेंट हो गया, बस असी आपे तो बाहर हो जाएंगे, सानू सुरत ही साडी, असी पता नहीं किवें रस्ता किवें कटांगे, ये परमात्मा जानता है। पर धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज इतने टोटे हुए शरीर कोलों लंघ के अपने बच्चे जिगर दे टुकड़ियां नूं वेख के अगे निकल गए। ये सी प्यार, इस इनू कहंदे ने प्यार। ये मोह नहीं है, मोह तो उत्ते उठ के होना ना, प्यार। उन्होंने समझ आ गई, ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, ए कुटुंब तू जे देखदा चले ना ही तेरे नाले, साथ तेरे चले ना ही तिस नाल क्यों चितलाइए। उन्होंने मोह च की हुंदा है? मोह च हुंदा है गुरु साहब तुसी मेरे ते मैं तुहाडा, यह मोह है। ध्यान नाल समझना, तुसी मेरे ते मैं तुहाडा, मतलब कि होर किसी दे भी नहीं। ते प्यार च की हुंदा है मैं तुहाडा ते तुसी सारियां दे। बस फर्क ये वे मोह ते प्यार दे विच। भाई दया सिंह ने महाराज की बांह फड़ ली, महाराज ए मैं की वेख रहा, तुसी कोल तुहाडे साहिबजादे शहीद पे ने, तुसी जा रहे हो, मैं अपना दुमाला उतला दुमाला उतार के तुहानू देना, इन मेरे दोनों साहिबजादे ते पा दो ना घट्टो घट्ट। है कोई ऐसा मखमल दियां चप्पलां ते कितने शहनशाह रूप विच और कितने महंगे कपड़े पाने वाले जिन्हां दे इतिहास दे विच कफन वास्ते भी वो नसीब नहीं होया। ते पता महाराज कहंदे ने ये जिहड़े बाकी सिख ने ऐसा लिया कोई, बाकी सिखां दे भी वो कौन ने? वो भी मेरे सिख ने। महाराज असी चले जावांगे ते इत्थे ईलां ते गिद्धां आके इन्हां दे शरीरां नूं खा जाणगियां। बड़े प्यारे बोल गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने उत्थे के कहणगे लै जाण, कोई गल नहीं, जितनी उच्ची लैके जाणगे ना ईलां इन्हां दे शरीरां नूं लै जाण भावें उत्ते, इतनी मेरी गल दी यकीन कर लेना कि गुरु घर दे विच इतने इतने लंबे निशान साहब होणगे जो इन्हां दे निशान सदा झूलते रहणगे। अज वेखो 300 फुट दे भी निशान साहब होंदे ने ना। ध्यान रख लेना उस वेले बाबा अजीत सिंह ते बाबा जुझार सिंह वाल महाराज कहंदे ने ये निशान इन्हां दे सदा ही झूलते रहणगे। और अज गवाह है वड्डे वड्डे निशान अज भी झूल रहे हैं। प्यार पाया ना सिखां ने, सिखां नूं इन्ना मान दिता है साध संगत, किसे भी मोलिए ने, किसे पीर ने, किसे पैगंबर ने अपने सिख नूं, हुण कई डेरियां दे विच कितना चिर सेवा कर दिंदे ने, गोबर दी फलानी कितनी सेवा करते ने। दसो कदी उन्हां नूं इन्ना मान दिता किसे भी पीर पैगंबर ने जितना गुरु साहब ने सानू एक नीच जात दे भी बंदे पता नहीं किहड़ी किहड़ी जातां तो आए सन, उन्हां नूं पातशाहियां दे दित्तियां। तो मैं ये वचन कर रहा सी कि प्यार कितना कीता सिखां नाल, असी कितना मुल पाया। भाई मान सिंह देखो, महाराज जद उस खिदराने की ढाब ते जद ये सिंघां ने जम के जद लड़ाई युद्ध लड़िया ना ते सारे शहीद हो गए। महाराज आप टिब्बी तो उतर के थल्ले आए, उस वेले भाई मान सिंह नूं गोद विच ले लिया। मैं इहदे नाल कंपेयर कर रहा सी, मैं क्या देखो अपने पुत्र की लाश नूं नहीं गोद विच रखिया, वो भी तो पे सन, पर भाई मान सिंह जी नूं गोद विच ले लिया। ये की है? भूले सिख गुरु समझाए, उजड़ जांदे मार्ग पाए।
भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर वडभागी पाया। ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੜ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 5000 ਹੀ ਸਿੱਖ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10,000 ਹੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 30,000 ਹੀ ਖਿਤਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗ ਲੈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ। देखो सेवक ते सदा मेहरबान है। सतगुर सिक्की करे प्रतपाल, सेवक को गुर सदा दयाल। वो सदा ही दयाल होता है। मंग ले महाराज, जेड़ा बेदावा मैं आनंदपुर लिख के भेजा दिता सी, उसनू पाड़ दे। देखो जामा फटिया होया है, लहू लुहान होया पिया, पैरों में जोड़ा भी नहीं सी महाराज दे, दस्तार भी ढिली हुई पई, सारा कुछ महाराज का शरीरिक तौर पर देखा जाए बहुत हालत खराब सी। पर महाराज ने उसनू कमर कस्से विच बन के रखा, उस बेदावे नू। सिख भुल जाते ने, गुरु कदी नहीं भुलदा। सिख नितनेम करना भुल जाता है, पर गुरु बख्शिशां वंडदे कदी नहीं भुलदा। हाँ, बख्शिशां ना मिलियां असी गिले शिकवे करते वेखे ने। कदी गुरु ने भी कहा, तू मेरे वास्ते की कीता है? मैं तेरे वास्ते लाल वारते, परिवार वारता, पिता नू चांदी चोंगी च वार दिता। 83 साल दी बुढ़ी माता सरहंद दे विच शहादत हो गई। छोटे साहिबजादियां दी, वड्डे साहिबजादियां दी, तुसी मैनू की दिता? इस करके उस वेले महाराज ने उस दे दर्द नू पहचानिया, ते वो बेदावा जिहड़ा लिखिया सी, असी तुहाडे सिख नहीं ते तुसी साडे गुरु नहीं, महाराज ने पाड़ दिता। ते सारियां नू फिर मंग लिया उन्होंने, फिर सारियां नू मुकत भी किया। मुक्तसर साहिब उस जगह का नाम है। महाराज साडी जिहड़ी टुटी हुई सी ना, उहनू गंढ लो। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਿਤਨੇਮ नहीं करते, वो भी बेदावा ही लिख के बैठे हैं, मनु खिमा कर देना। मैं छोटी गल नहीं कह रहा, हो सकता है किसी ਜਿਹੜੇ नहीं करते होणगे वो बुरा मन जाने इस गल का। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ सवेरे नहीं जागते, नितनेम नहीं करते, गुरु की बाणी नहीं पढ़ते, सत संगत नहीं करते, वो समझ लो गुरु नू बेदावा ही लिखिया पिया उन्होंने। होर बेदावा की हुंदा है कि गुरु की कार दे उत्ते असी मुनकर हो जाइए, असी गुरु की दसी हुई सड़क तो असी मुनकर हो जाइए। बस सलाम तो कर रहे, मैं पहले स्टार्टिंग तो की सलाम कर रहे हैं, पर नाल निकता चुन्नी भी कर रहे हैं कि गुरु साहब एवें नहीं होना चाहिए, जाप साहब की बाणी नहीं हुंदी, ये नहीं हुंदा, अमृत वेला की हुंदा है। मारे कहंदे ने पढ़ी दे ना, हासे वारी हुणे मैं क्या सलाम जवाब दोवें करे, मुंडो कुठा जाए, मस्तक भी टेक रहे हैं, मत्था भी टेक रहे हैं, मत भी रख रहे हैं, पर कहते गुरु साहब जो तुसी कह रहे हो उहदे असीं जवाब भी दे रहे हैं। भाई लैणा जी ने जवाब नहीं दिता कि पेड़ ते मिठाई होई, नहीं, गुरु साहब का हुक्म है। साहिबजादियां नूं भी कहा, साहिबजादे कहन लगे, वो लैणा जी चलो साडे पापा जी तो उम्र दे हो गए ने, तुसी ते समझदार हो, कदी पेड़ ते मिठाई होई है कदी अज तक दसो? भाई लैणा जी कहते मनु नहीं पता मिठाई हुई है कि नहीं, क्योंकि वो अवस्था च नहीं सी कि सलाम जवाब दोवें करे। नहीं, वो जवाब नहीं, जो गुरु कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। उन्होंने कहा मेरे गुरु ने क्या है, मनु नहीं पता मिठाई है कि नहीं है, मेरा काम है इनू हिलाना, मिठाई को होना, फल देना, वो परमात्मा दे गुरु नानक दे हथ है। जे गुरु ने कहता अमृत वेले जागना है तो बस जागना है, ये नहीं पता ये विच किंतु परंतु ना करिए। जे कीता है तो बेदावा लिख के असी जा रहे हैं, मनु खिमा कर देना। जे नितनेम नहीं कर रहे जी मैं तो एवं ही कर लेना, वह नितनेम की है, नहीं, असी बेदावा लिखिया होया है। भाई मान सिंह नूं वो बख्शिशां मिलियां, मुक्त जीवन मुक्त की पदवी प्राप्त हुई, सारे 40 मुक्ते भी नाल। सो गुरु जदों प्यार करन ते त्रुठदा है ना,
ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੋਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਉਹ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਨ ਆਪਣੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਢਹਿਰੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦ ਭਾਈ ਹੰਦਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਥੜੇ ਦੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਗਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਹੰਦਾਲ ਵੀ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਟਾ, ਜਿਸ ਗੁੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਟਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕਦਮ ਭੱਜਦਾ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਭੱਜਦਾ ਆਇਆ, ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਗੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹੱਥ, ਉਹੀਓ ਆਟੇ ਵਾਲੇ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਸੀਸ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ? ਸੀਸ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਝੁਕਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋਗੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹੰਦਾਲ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਝੁਕੇ ਹੋ, ਨੀਵੇਂ ਹੋਏ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਇਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੇ, ਹੁਣ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁਣ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਝੁਕਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਝੁਕ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਝੁਕਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਬ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨਿਕਤਾ ਚੁੰਨੀ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਕੱਢ ਦੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਹੱਥੀ ਗਲਵਕੜੀ ਲੈ ਕੇ ਉਠਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੇ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੰਦਾਲ ਜੀ ਮਨ ਕਰਕੇ ਝੁਕੇ ਹੋ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿੱਥੇ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਸਾਡੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਹੰਦਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਹੰਦਾਲ ਤੇਰੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਮਨ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਇਤਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪੰਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪੰਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਟਾਲਿਆ, ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਪੰਜ ਹੀ ਨੇ, ਛੇਵਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਔਰ ਇਹ ਪਦਵੀਆਂ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਕੇ, ਨਾ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਿਤਨੇਮ ਖੁੰਝ ਜਾਏ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਉਸ ਦਿਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਵਿਖਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ, ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਜਾਪੇ। ਉਹ ਦਿਨ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ, ਆਪਣਾ ਫਿਰ ਜਾਪੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ। ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ 230 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਤ ਪਾਈਏ। ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਰੋਮਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਾਖਾਨੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦਾਸਤੀਆਂ ਨੇ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।